Okay, guys, we are starting off. And this is Noor Jannat, Deputy Head Research Development. Welcome to the first webinar of Capacity Building Workshop series conducted by RSRS. So, Ravilian Student Research Society, as you all know, works on a vision to make the difficult process of research approachable for the students. From holding webinars and seminars to providing research mentors, RSRS has been working tirelessly to inculcate the young researchers with the knowledge they need to become future leaders. The topic of today's webinar, as you all are expecting, is perfecting your research proposal. So what do you think is a research proposal? Can anyone answer the question? In the chat, please. Okay, someone just said synopsis. Anyone else? Okay, it is a summary. Very good. Meta-analysis. All right. Anyone else? Kindly engage with me. Synopsis, basically a research. No, it's not aims and objectives. For the sake of scholarships, article, detailed plan. All right. By the end of this workshop, you'll be able to know what a proposal is. So a research proposal is a concise and a coherent summary, as some of you said, of your proposed research. And proposals are evaluated on their cost and their potential impact of the research and on the soundness of the plan for carrying it out. And it shows why your project is worthwhile. Obviously, it is very important to know as to why are you conducting a research, right? So for the purpose of knowing more about research proposal, today we have our speaker, Fatma Faraz, who is President RSRS. She has 6 publications and many ongoing projects, and she is literally the best suited to guide us today. So let's know more about research proposals from her. Please, Fatma. Thank you, Noor. Thank you for the kind words. Assalamu alaikum, everyone, and I welcome you all. And it's so great to see so many of you. I'll be talking on perfecting your research proposal, and it's not your ordinary proposal. ये actually हम research proposal की बात कर रहे हैं. That is actually synopsis. ठीक है? तो मैं आप सबके चैट बॉक्स में देख रही थी. Many of you actually know कि research proposal या synopsis होता क्या है, तो मुझे उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी. Okay, so we'll be discussing what is a synopsis and why is it important, and then we'll be going on to how to write a synopsis. ठीक है? So सबसे पहले हम ना research के कुछ steps देखेंगे कि research किस तरह की जाती है. तो सबसे first step I have written is synopsis, जिसके ऊपर आज की हमारी webinar है. ठीक है? Next हम उस synopsis को approve करवाते हैं. Thirdly, हम अब उस रिसर्च को कंडक्ट करने लगे हैं. ठीक है? वो रिसर्च हम कंडक्ट किस तरह से करेंगे? लेट्स से मैंने डाटा कलेक्ट करना है उस रिसर्च में, तो डाटा कलेक्ट होगा, उसके बाद डाटा कंपाइल होगा, उसके बाद उसको मैं एनालाइज करूंगी, एंड फाइनली मैं अपना मैन्युस्क्रिप्ट यानी आर्टिकल यानी पेपर लिखूंगी, एंड देन वो पब्लिश हो जाएगा. सो ये ब्रीफ से 5 स्टेप्स हैं जो कि हम किसी भी रिसर्च में फॉलो करते हैं. ठीक है? तो एज यू कैन सी साइनॉप्सिस इज द फर्स्ट स्टेप. यू कांट इग्नोर साइनॉप्सिस. ठीक है? साइनॉप्सिस अच्छा लिखेंगे तो आगे के 4 स्टेप्स आपके अच्छे गुजरेंगे, एंड बाय दैट आई लिटरली मीन इट. अब अगर आपने साइनॉप्सिस अच्छा लिखना है ना, तो आपको अकॉर्डिंगली यू विल गेट अप्रूवल आसानी से. अगर आपका साइनॉप्सिस अच्छा नहीं है, आप अप्रूवल बोर्ड में बार बार रिजेक्ट होंगे. ठीक है? सेकेंडली अगर हम ये देखें कि रिसर्च में साइनॉप्सिस क्या हेल्प कर सकता है, तो साइनॉप्सिस जो है वो एक्चुअली एक रोड मैप है, एक प्लान है. तो अगर आप अपना प्लान बिफोर हैंड अच्छा रखेंगे तो आपकी रिसर्च स्मूथली गुजरेगी. अगर आप अपना साइनॉप्सिस ही अच्छा नहीं बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपकी रिसर्च में क्या होना है, कैसे होना है, किससे डाटा कलेक्ट करना है, डाटा एनालाइज कैसे करना है. ठीक है? एंड ऑफ कोर्स साइनॉप्सिस विल हेल्प यू इन मैन्युस्क्रिप्ट एंड पब्लिकेशन एज वेल. ठीक है? अच्छा, अब इस पे ये है कि साइनॉप्सिस से पहले व्हाट वी डू इज हम अपने टॉपिक में एक माइंड में एक टॉपिक लेकर आते हैं. ठीक है? और अब उसके ऊपर मैंने साइनॉप्सिस लिखना है. सही है? तो अब लेट्स से मेरे माइंड में एक टॉपिक आया है, प्रेवलेंस ऑफ इंसोम्निया इन मेडिकल स्टूडेंट्स.
एंड वन ऑफ माई क्लासमेट्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट टॉपिक। अब हम दोनों अपने अपने माइंड में ये टॉपिक लेकर चल रहे हैं और इसके ऊपर साइनॉप्सिस लिख रहे हैं, और हम दोनों जाकर बैठ जाते हैं अप्रूवल वाली मीटिंग में, और वहां पर उन लोगों को पता चलता है कि इन दोनों का तो सेम टॉपिक है। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के ख्याल से? किसका टॉपिक अप्रूव होना चाहिए जब दोनों का एग्जैक्टली सेम टॉपिक हो जाए और दोनों ही अप्रूवल मीटिंग में आ गए हैं? तो किसका टॉपिक अप्रूव करना चाहिए, किसको अप्रूवल देना चाहिए और किसको नहीं? ओके, सुफियान कह रहे हैं कि जिसका साइनॉप्सिस बेटर है, ओवरलैप हो गया है, द वन विद बेस्ट साइनॉप्सिस, ओके, दे कैन वर्क एज कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर्स एज वेल, द वन विद द बेटर साइनॉप्सिस, ठीक है, द वन विच इज मोर फीजिबल, नोवेल एंड बेटर मेथोडोलॉजी। ओके, अच्छा, अगर हम ये करें कि साइनॉप्सिस लिखने से पहले ही ऐसे लोगों को पॉइंट आउट कर लें जो कि सेम टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो डू यू थिंक ये सिचुएशन पैदा होगी फिर? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, RSRS में वी स्टार्ट विद टॉपिक रजिस्ट्रेशन। टॉपिक रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी रिसर्च दैट यू आर गोइंग टू डू। अब जो रावेलियंस मुझसे सुन रहे हैं, अगर आप लोगों के माइंड में कोई टॉपिक है तो जस्ट गेट इट रजिस्टर्ड अंडर RSRS, ताकि वो टॉपिक आपका लॉक हो जाए और वो टॉपिक कोई और फिर ना कर सके। ओके, अच्छा, उसके बाद ये है कि अगेन वही बात कि अगर आपका साइनॉप्सिस अच्छा होगा तो फिर आपके आगे सारे स्टेप्स अच्छे होंगे। सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इट गिव्स अ ब्लूप्रिंट और आउटलाइन ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट एथिकल क्लियरेंस, यानी अप्रूवल मीटिंग्स में जब आप जाते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट होता है अपना साइनॉप्सिस शो करना। यू कांट जस्ट गो एंड सिट इन अ मीटिंग एंड टेल देम कि मेरा ये टॉपिक है, अप्रूव कर दें मुझे। वो प्रॉपर एक रिटन प्लान मांगते हैं आपसे, एंड दैट रिटन प्लान इज एक्चुअली अ साइनॉप्सिस, ठीक है। एंड फाइनली, अगर आपने कोई साइनॉप्सिस, अगर आपने कोई ऐसी रिसर्च करनी है जिसमें यू नीड फंड्स, तो अब लेट्स से मैं करना चाहती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई रिसर्च करना चाहती हूँ, एंड उसके लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, एंड आई गो टू माय वाइस चांसलर और मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज़ मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। सो डू यू थिंक वो मुझे पैसे देंगे विदाउट, अगर मेरे हाथ में कोई साइनॉप्सिस, कोई प्रपोजल नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो जब मैं उनको अपना एक रिटन प्लान दूंगी कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस पर करना है, तो वो ऑफ कोर्स मेरी हेल्प करेंगे, और अगर मैं नहीं दूंगी तो नो वन इज गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा, तो साइनॉप्सिस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये बहुत ज्यादा लग रहे हैं देखने में, बट अगर हम कंसाइसली बात करें तो सबसे ऊपर आपका एक टाइटल होगा, ऑथर्स की लिस्ट होगी, एंड देन विल राइट आवर इंट्रोडक्शन, ऑपरेशनल डेफिनेशंस। अब इन सब की डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, बट अभी जस्ट मैं सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ। देन ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, मटेरियल्स एंड मेथड्स, and then we'll write ethical considerations, references and annexure. Okay, अब्दुल हसीब, साइनॉप्सिस ये होता है कि अभी रिसर्च स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन मैं रिसर्च स्टार्ट करने से पहले एक प्लान बनाऊंगी, ठीक है, वो प्लान मेरा साइनॉप्सिस होता है। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले कि आपने कैसे रिसर्च करनी है, ये साइनॉप्सिस बताता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव द फर्स्ट थिंग दैट इज ऑथर्स लिस्ट, ठीक है। ऑथर्स लिस्ट ये होती है कि जो भी आपके ऑफ कोर्स पहले टाइटल आएगा, टाइटल आप लिखेंगे लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन डॉक्टर्स ऑफ होली फैमिली हॉस्पिटल। ये एक बहुत आर्बिट्री सब मैंने टॉपिक बनाया, ठीक है, जस्ट आप लोगों को एग्जांपल देने, ठीक है। और अब इसमें ना 3 ऑथर्स थे, एक मैं थी, मेरे साथ एक पर्सन है अली अहमद एंड एक आमना अली। तो ऑथर्स इस तरह से हम लिखते हैं कि नेम के बाद हम 1 लिखेंगे, उसको हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, देन नीचे 1 के साथ हम उसका मेडिकल यूनिवर्सिटी या जिस भी इंस्टीट्यूट से उनका अफिलिएशन है, विल जस्ट राइट दैट, ठीक है। अब लेट्स से जो आमना है ना, वो मेरी फ्रेंड है और वो मेरी ही क्लास में पढ़ती है, मेरे ही कॉलेज में है, तो अब क्या चेंज होना चाहिए इस ऑथर्स लिस्ट में? कैन एनीवन टेल? यस, सुपरस्क्रिप्ट नंबर को क्या होगा अगर आमना मेरी ही क्लास पे पढ़ती है, मेरी यूनिवर्सिटी में? यस, एग्जैक्टली, 3 विल बिकम 1। अगर किसी को ये बात नहीं समझ आई, आई कैन रिपीट। आपने जस्ट
इन द ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन आपने अपने ऑथर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने ऑथर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन मैं हूँ, मेरे साथ कोई अली है, फिर आमना है, ठीक है। मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, अली जो है वो XYZ मेडिकल यूनिवर्सिटी से है, आमना जो है वो ABC मेडिकल यूनिवर्सिटी से नहीं, लेट्स से 1 2 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। तो मैं तीनों को डिफरेंट नंबर असाइन करूंगी, सुपरस्क्रिप्ट में वो नंबर लिखूंगी, और नीचे 1 के साथ मैं अपना यूनिवर्सिटी, 2 के साथ अली की यूनिवर्सिटी एंड 3 के साथ आमना की यूनिवर्सिटी का नेम लिखूंगी, ठीक है। एग्जैक्टली, सेम नंबर मीन्स दैट दे बिलोंग टू द सेम इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर अब सबको क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। So this is a small activity for all of you. If you had if you had to write the topic of the research you are working on using only emojis, which ones would you choose? Just write your topic emojis की form में in the chat box. Okay, while everyone is doing this, I'll just summarize. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि साइनॉप्सिस हमारी रिसर्च का एक प्रपोजल होता है। साइनॉप्सिस हम रिसर्च करने से पहले लिखते हैं। साइनॉप्सिस का एक ही मकसद होता है कि हम अप्रूवल हासिल करें। अप्रूवल किससे लें? एथिकल रिव्यू बोर्ड जो होता है ना, कमेटी होती है, उससे लेते हैं। हम सब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हैं, हर इंस्टीट्यूशन का एक ERB कमेटी होती है। अगर नहीं है तो नॉर्मली ये होता है कि जिस भी डोमेन में आपने अपना साइनॉप्सिस लेना होता है ना, जिस भी डोमेन से, उसके जो HOD होते हैं वो बेसिकली आपको अप्रूवल देते हैं। लेट्स से मैंने कोई मेडिसिन वार्ड में कोई रिसर्च करनी है तो मेडिसिन के HOD से जाके मैं अप्रूवल लूंगी, ठीक है। तो इसके अलावा साइनॉप्सिस ये होता है कि अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर साइनॉप्सिस की कोई वैल्यू नहीं होती, लेट्स से अगर मुझे अप्रूवल मिल गया तो साइनॉप्सिस एक तरह से मेरा साइनॉप्सिस का अब और कोई काम नहीं है, तो फिर व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? ओके, यस, एग्जैक्टली। जो साइनॉप्सिस होता है ना, उसके अंदर इंट्रोडक्शन और मेथोडोलॉजी होती है, और इंट्रोडक्शन और मेथोडोलॉजी अगर आप अच्छी लिख लेना तो वही आपकी मैन्युस्क्रिप्ट में भी हेल्प करती है। आपको जस्ट उसको थोड़ा सा रिफाइन करना होता है एक आर्टिकल की फॉर्म में, और वही चल जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अप्रूवल के बाद आपका साइनॉप्सिस जाया हो जाएगा। एज लॉन्ग एज आपने बहुत अच्छा साइनॉप्सिस लिखा हो तो आपका साइनॉप्सिस आगे तक आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ओके, वी आर डन विद आवर एक्टिविटी। सबके इमोजीज बहुत अच्छे थे। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आपके ख्याल से साइनॉप्सिस के इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए? लाइक व्हाट थिंग्स और व्हाट कंपोनेंट्स डू यू थिंक अ साइनॉप्सिस इंट्रोडक्शन शुड हैव? ओके, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, टॉपिक नेम तो हम ऊपर लिखा है। लाइक डू यू थिंक हम दोबारा लिखेंगे टॉपिक नेम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव्स? ओके, ठीक है, ऑलराइट। जो इंट्रोडक्शन होता है ना हमारा, वो इट इज बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ योर रिसर्च। एंड व्हेन आई से दिस आई एक्चुअली मीन कि हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा ना, वो हमारी प्रॉब्लम को एक 360 डिग्री तरीके से एक्सप्लेन करेगा। वो बताएगा कि लेट्स से एक टॉपिक बना लेते हैं, लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ डॉक्टर्स इन लेट्स से होली फैमिली हॉस्पिटल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है एंड देन डॉक्टर्स की बात हो रही है। तो मेरा इंट्रोडक्शन फिजिकल एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करेगा, डॉक्टर्स की फिजिकल एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करेगा, और इसकी इंपॉर्टेंस को भी एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट रिसर्च हैज ऑलरेडी बीन डन ऑन द टॉपिक एंड इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई अ गैप इन द करंट लिटरेचर, ठीक है। मतलब ये कि रिसर्च जो मैं कर रही हूँ लेट्स से फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, ऐसी तो 1000 रिसर्चेस पड़ी हुई हैं। तो फिर मैं ये रिसर्च क्यों कर रही हूँ? मुझे अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बताना है कि गैप कहाँ आ रहा है लिटरेचर के ऊपर। एक और एग्जांपल है कि मैं इंसोम्निया इन मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर रही हूँ, ठीक है। तो अब इंसोम्निया, अगर मैंने गूगल पर जाकर देखा, पबमेड पर देखा कि मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब के ऊपर तो मेडिकल स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा मिल रही हैं स्टडीज, बट इंसोम्निया के ऊपर नहीं मिल रही। तो ये चीज भी मैं अपने इंट्रोडक्शन में हाईलाइट करूंगी कि ऑल्दो बहुत ज्यादा रिसर्चेज इसके ऊपर हुई हुई है, बट इंसोम्निया के ऊपर इतनी ज्यादा नहीं हुई हुई, इसीलिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल यू नीड इज अ गुड लिटरेचर रिव्यू फॉर एन इंट्रोडक्शन। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ लिटरेचर रिव्यू?
बिकॉज जो इंट्रोडक्शन होगा ना, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर लिटरेचर रिव्यू प्रायर रीडिंग अबाउट द टॉपिक. यस. सो बेसिकली जो लिटरेचर रिव्यू होता है ना, यू हैव टू डू इट जब आपके माइंड में टॉपिक आना शुरू हो जाए. अगर आप लिटरेचर रिव्यू अच्छा नहीं करते, यू एंड अप गेटिंग फेल. क्यों? क्योंकि लिटरेचर रिव्यू इज गोइंग टू टेल यू आपकी रिसर्च फिजिबल है या नहीं, आपकी रिसर्च इनोवेटिव है या नहीं, आपकी रिसर्च नॉवल है या नहीं, या आपकी रिसर्च एथिकल है या नहीं. ये सारी चीजें कौन बताएगा? आपका लिटरेचर रिव्यू बताएगा. तो लिटरेचर रिव्यू अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी रिसर्च थ्रू आउट, आपका रिसर्च जर्नी जो है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा. तो हम कैसे रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं? हम पबमेड पर जा सकते हैं, गूगल स्कॉलर पर जा सकते हैं, और कोई और जो सर्च इंजन हैं, नॉट द ब्लॉग्स बट इस तरह के जहाँ पर रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, हम वहाँ पर जाकर बट उसी एरिया से रिलेटेड टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं. एंड देन हमें पता चल जाएगा कि हम ये रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं. अब इसकी एक एग्जाम्पल है. सपोज मैं एक थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने माइक्रो की बुक में पढ़ा है कि येलो फीवर के बारे में मैंने कुछ पढ़ा और वो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है. ठीक है. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक. एंड मैं सोचती हूँ कि कल से मैंने अपने मेडिसिन वार्ड में जाना है और मैंने येलो फीवर के ऊपर स्टडी करनी है. ठीक है. और येलो फीवर के ऊपर अब मैं रोज वार्ड जाती हूँ एंड मुझे जो है वो येलो फीवर का पेशेंट फर्स्ट डे नहीं मिलता. सेकेंड डे जाती हूँ, मुझे नहीं मिलता. एंड लेट्स से कि 6 महीने गुजर गए हैं, मुझे येलो फीवर का एक पेशेंट नहीं मिला. लेकिन मैं तो येलो फीवर के ऊपर रिसर्च करने आई थी और मेरा इतना ज्यादा टाइम लग गया. तो व्हाट डू यू थिंक, मैंने कहाँ गलती की थी? मैंने लिटरेचर रिव्यू के लेवल पर गलती की थी. क्यों? क्योंकि येलो फीवर तो पाकिस्तान में है ही नहीं. तो ये चीज मुझे कौन बताएगा? ये चीज मुझे लिटरेचर रिव्यू बताएगी. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं पबमेड पर जाऊं या पबमेड या गूगल स्कॉलर पर जाऊं और वहां पर मैं लिखूं इंटेरिक फीवर दैट इज टाइफॉइड, तो मुझे पता चलेगा कि पाकिस्तान में इंटेरिक फीवर कितना प्रेवलेंट है और मैं किस तरीके से इसको कर सकती हूँ. ठीक है. तो लिटरेचर रिव्यू इज ऑलवेज गोइंग टू टेल यू. अभी मुझे कोई इंसिडेंट्स की स्टडी भी मिल जाएगी, जैसे ये है. ये स्टडी मुझे बता देगी कि वाकई में जो इंटेरिक फीवर है वो पाकिस्तान में प्रेवलेंट है. यहाँ पर इसके रिजल्ट्स में इसका इंसिडेंस रेट आएगा. बट मोस्टली स्टडीज बता देती हैं. तो हमें प्रेवलेंस वाली स्टडीज को देखकर पता कर लेना होता है कि जो भी हम डिजीज या टॉपिक के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये हमारी सेटिंग में हो भी सकता है कि नहीं, या सेटिंग नहीं तो इसके अलावा मुझे थ्रू आउट वो मेरा रिसर्च जर्नी एक्सप्लेन कर देगा कि करना क्या है. और अक्सर हमें कुछ ऐसी स्टडीज मिल जाती हैं लकीली जो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी होती हैं जैसी हम करना चाह रहे होते हैं अपनी सेटिंग में. तो वो दे बिकम आवर पेरेंट स्टडी. लाइक हम जो भी करते हैं ना, हम उस रिसर्च को देख कर करते हैं, बट दैट इज नॉट चीटिंग एक्चुअली. क्यों? क्योंकि हम अपनी सेटिंग में कर रहे होते हैं और हम अपने तरीके से कर रहे होते हैं. बट हमें ये पता होता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उस रिसर्च को देखकर. सो यू कैन नॉट डिनाई लिटरेचर रिव्यू. ठीक है. तो लिटरेचर रिव्यू आप सबने करना है. अगर आप लोगों ने साइनॉप्सिस भी लिखना स्टार्ट नहीं किया ना, आप लोगों के माइंड में जस्ट टॉपिक है, तो लिटरेचर रिव्यू लाजमी करें. देन इंट्रोडक्शन जो होता है ना, इट्स लाइक अ फनल. फनल की शेप कैसी होती है? वैसे ये मैंने स्लाइड में बनाई हुई है. फनल ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से नैरो होता है, राइट? तो बिल्कुल इसी तरह आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ना, इट इज ऊपर से ब्रॉड और नीचे आते आते आपने उसको नैरो डाउन करना होता है. एंड व्हेन आई से दिस आई मीन कि स्टार्ट में आपने ये करना होता है कि स्टार्ट में यू हैव टू टॉक जनरली. ठीक है. आप जनरल बातें करेंगे एंड देन आहिस्ता 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 जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आप उसकी तरफ आएंगे. यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम जनरली इन द स्टार्ट एंड देन यू कंटिन्यू टू ऐड इंटरनेशनल नेशनल स्टडीज रिलेटेड टू योर टॉपिक एंड देन यू नैरो डाउन. ठीक है. इसकी एग्जाम्पल ये है कि यही स्टडी थी लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन डॉक्टर्स ऑफ होली फैमिली हॉस्पिटल. ठीक है. अब ये कोई और मेरे साइनॉप्सिस का पार्ट है. इट्स नॉट परफेक्ट और बट इट इज गोइंग टू गिव थोड़ा बहुत आइडिया के किस तरीके से लिखा जाता है. तो फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर अब मैं रिसर्च कर रही हूँ, साइनॉप्सिस मैंने लिखना है. तो आई एम नॉट स्टार्टिंग विद डॉक्टर्स और आई एम नॉट स्टार्टिंग विद होली फैमिली हॉस्पिटल. आई एम स्टार्टिंग विद फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस एक्चुअली. ठीक है. कि फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. अब ये मैंने 2-3 बातें उसके ऊपर लिखी. सेकेंडली मैं आई फिजिकल इनएक्टिविटी के नुकसानात के ऊपर, मैंने उसको बताया. एंड देन यू गाइस कैन सी के
मैंने लिखा हुआ है अ स्टडी कंडक्टेड इन पाकिस्तान फाउंड मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स वर फिजिकली इनएक्टिव। अब क्योंकि मैं पाकिस्तान में ये स्टडी करने जा रही हूँ ना, तो मुझे पाकिस्तान का भी रेफरेंस देना है कि मैं क्यों डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रही हूँ, क्यों मैं पाकिस्तान के अंदर ये रिसर्च करना चाह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज फिजिकली इनएक्टिव। ओके, एंड देन आई नैरो डाउन माय इंट्रोडक्शन टू मेडिकल प्रोफेशनल्स, यानी डॉक्टर्स और नर्सेस। ठीक है, अब उसके ऊपर मैंने बात की कि मेडिकल प्रोफेशनल्स, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों से उनका रोज मिलना जुलना होता है, तो वो अपने जो एटीट्यूड्स और अपने जो बिहेवियर्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। अब अगर डॉक्टर खुद फिजिकल एक्टिव नहीं होगा तो वो अपने पेशेंट को कैसे कह सकता है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन कर दिया कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली इट इज रिकमेंडेड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, ये टॉपिक है लर्निंग एनवायरनमेंट को असेस करना था एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स यूजिंग ड्रीम इन्वेंटरी। ठीक है, अब देखो इसमें तीन बातें हैं। एक तो ये कि मैंने असेसमेंट करनी है, दूसरा ये कि किसकी करनी है, लर्निंग एनवायरनमेंट की करनी है, तीसरी किसके थ्रू, यानी कौन करेगा, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स। तो आपके ख्याल से किस चीज से मुझे स्टार्ट करना चाहिए? लाइक जनरल जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा? सुपरस्क्रिप्ट पे मैं अभी आऊंगी, वो नेक्स्ट स्लाइड में है माज। Yes, I'll just start with what is actually a learning environment. ठीक है, as you can see this sentence, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि learning environment में क्या क्या आता है, learning environment क्या होता है और इसकी importance क्या है, और students की perception क्यों important है about the learning environment, यानी students क्या समझते हैं कि उनकी university का learning environment कैसा है। ठीक है, एंड देन हम चलेंगे, नैरो डाउन करेंगे अपने इंट्रोडक्शन को किसके ऊपर, मेडिकल लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो हम अपने लर्निंग एनवायरनमेंट को देखना चाहते हैं, और मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल लर्निंग एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है हम एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर इंट्रोडक्शन गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक थिंग्स। ठीक है, अब बात आती है वो कि हम जब भी कोई लाइन लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, वी आर गोइंग टू एड अ रेफरेंस टू इट। ठीक है, इंट्रोडक्शन की कोई एक सिंगल लाइन, एक्सेप्ट फॉर सम रैशनल और इम्पोर्ट, कोई आपने इस तरह की कोई कंक्लूजन टाइप लिखना हो, कोई एक लाइन भी विदाउट रेफरेंस इंट्रोडक्शन में नहीं होती। रेफरेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि लेट्स से मैं स्मोकिंग और लंग कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ और मैं अपने इंट्रोडक्शन में लिखती हूँ स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। ठीक है, या कोई कोई भी फैक्ट लिखती हूँ मैं, और मैं ये XYZ पर्सन को जाकर बताती हूँ, वो कहेगा कि मैं कैसे मान लूँ कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, लाइक इसका एविडेंस कहाँ है। हम भी जब इसी तरह होता है, हम किसी को कोई बात बताना चाह रहे हो, वो बंदा नहीं मानता, हम कहते हैं हाँ मैम ने ये बात की थी, या उस टीचर ने ये बात की थी, या ये रिसर्च कहती है, तब हम उस बंदे की बात मानते हैं कि हाँ ये बंदा सही बात कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हम अपने इंट्रोडक्शन में ये बात बताते हैं कि ये लाइन कहाँ से ली गई है और ये कौन से ऑथर ने कहा था। सही है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम कोई लाइन कहीं से भी लेंगे, हम उसको कॉपी नहीं करेंगे, हम उसको चीट नहीं करेंगे, हम उसको पैराफ्रेज करेंगे। मैं भी आप लोगों को करके बताती हूँ, बट ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो हमने अपने माइंड में रखने हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि रेफरेंसेस को हम सुपरस्क्रिप्ट करेंगे एंड दे आर गिवन एट द एंड ऑफ साइनॉप्सिस। ठीक है, अब हम इन एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वन लिखा हुआ है ना, दिस एक्चुअली मीन्स कि नीचे रेफरेंसेस में फॉर द अभी के लिए ये समझ लें कि ये कोई स्टडी थी, और रेफरेंसेस में ये वन मैंने यहाँ से लिया लिया है। ठीक है, और टू बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर नीचे में जाऊंगी और टू लिखूंगी और बताऊंगी कि ये रिसर्च मैंने कहाँ से ली थी। ठीक है, अच्छा, अब इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप उससे रेलेवेंट स्टडीज, कोई ढेर सारी स्टडीज खोल लें। सही है, लेट्स से ये मैंने फिजिकल एक्टिविटी की एक रिसर्च खोली हुई है, आप यहाँ पर जाएंगे सिमिलर आर्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको कुछ सिमिलर आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ये कुछ सिमिलर आर्टिकल्स मिल गए, दो तीन ये भी खोल लें। ठीक है, अब आपके पास कुछ जो है ना आर्टिकल्स इकट्ठे हो गए। अब फर्स्ट आर्टिकल मैंने खोला और ये आर्टिकल कह रहा है हेल्दी एजिंग इज द एबिलिटी टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी के लिए लेट्स सपोज कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो पहले मैं इसको कॉपी करती हूँ और जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, और वन भी डाल देती हूँ, और नीचे जाकर वन में इसको ऐसे करके यहाँ पर साइट करूंगी। साइट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, आप एंड नोट वगैरह से भी कर सकते हैं, बट अभी मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी बिकॉज वो इटसेल्फ एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पर नीचे जाकर
लेट्स से 1 में मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब डू यू थिंक द जॉब इज डन? यहाँ पर कुछ और होना बाकी है इस सेंटेंस के साथ। Female Fatma says that we have to paraphrase. Exactly. You can't copy, you have to paraphrase each and every sentence that you write in your synopsis. If you don't, इट्स प्रोबेबल कि कुछ लोग आपकी साइनॉप्सिस की जो है ना प्लेजरिज्म रिपोर्ट ना भी निकालें, बट बाद में जब आप अपने साइनॉप्सिस की चीजों को यूज करेंगे फॉर मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, यू विल नीड टू पैराफ्रेज देम, तो व्हाई नॉट डू इट एट द स्टार्ट, ठीक है। अब ये एक लाइन मैंने ली थी, स्लीप डिप्रीविएशन इज क्लोजली रिलेटेड टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन एटसेट्रा, सही है। तो इसको मैंने किस तरह से चेंज किया, देयर इज कंसिडरेबल एविडेंस दैट हाइपरटेंशन CST आर कॉज्ड बाय स्लीप डिप्रीविएशन। जस्ट इस तरह की आपने पैराफ्रेजिंग करनी होती है, सो दैट इट डज नॉट काउंट एज प्लेजरिज्म। ओके, यस एग्जैक्टली, कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना आपने उसको इस तरह से चेंज करना है कि पता चले कि ये आपका लिखा हुआ या किसी और का लिखा हुआ नहीं हुआ। ऑल्सो हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करना चाहिए, लाइक रैंडमली आपने सिर्फ फैक्ट स्पिट आउट नहीं करने अपने इंट्रोडक्शन में कि ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ये भी पकड़ो, ये भी पकड़ो, आपने ये नहीं करना। आपने हर सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कॉपी करना है, ठीक है। प्लेजरिज्म इज जस्ट कॉपिंग अदर ऑथर्स वर्क, ऑल्दो आप उसको प्रॉपरली रेफर भी कर दोगे, फिर भी आपने उसको चेंज करना होता है अपनी वर्डिंग में। प्लेजरिज्म इज एक्चुअली चीटिंग, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इंट्रोडक्शन यहाँ तक कंप्लीट है। इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस हमें समझ आ गई। इंट्रोडक्शन गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्ट्स योर लिटरेचर रिव्यू, इंट्रोडक्शन हैज रेफरेंसेस, इंट्रोडक्शन में आप चीज़ों को कॉपी नहीं करते हो, रेफरेंसेस आर टू बी सुपरस्क्रिप्टेड, और ये सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लिया है, ठीक है। आई कैन एक्चुअली रिपीट द लास्ट टास्क। आप लास्ट टास्क, कौन सा लास्ट टास्क? Yes, exactly. It is necessary to write reference of the paraphrase too. आप इवन अगर एक वर्ड भी ले रहे हैं ना किसी रिसर्च से, तो उसको भी आपने उसका रेफरेंस भी देना है, और आप अगर सेंटेंस को पैराफ्रेज कर भी दो तब भी आपने रेफरेंस देना है। इंट्रोडक्शन कितना लंबा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन आपका तकरीबन आप 3 पैराग्राफ्स आर इनफ। अगर आप इसके अंदर अभी हम एक और चीज भी ऐड करेंगे, दैट इज रैशनल एंड रिसर्च गैप, तो फिर वो मिला के तकरीबन 3-4 पैराग्राफ्स बन जाते हैं। एज लॉन्ग एज यू प्रोवाइड इनफ डिटेल्स ऑफ द बैकग्राउंड प्रॉब्लम, आपका इंट्रोडक्शन इज फाइन, ठीक है। अब मोस्टली ये होता है कि जब आप रिव्यू मीटिंग्स में जाते हैं, जो एथिकल रिव्यू बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, तो वो मोस्टली आपका इंट्रोडक्शन इतना नहीं सुनते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो आपको बस अपना इंट्रोडक्शन अगर अच्छा लिख रहे हैं तो उसका एक ही सोल पर्पज है कि आपका अपना लिटरेचर रिव्यू अच्छा हो, और वो बाद में आपके मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में आपकी हेल्प कर सके। रैशनल इज द इम्पोर्टेंस। अब हम उसकी तरफ जाते हैं, बट फर्स्ट वी हैव अ पोल फॉर यू, ठीक है। अब हम पोल लॉन्च करते हैं, एंड आप सब ने उसको आंसर करना है, फिर हम देखेंगे कि किस किसने ठीक आंसर किया। आयशा, वी हैव टू साइट एन आर्टिकल, ठीक है, हम साइट करते हैं उसको, बट हमारी अपनी वर्डिंग्स भी होती हैं। लेकिन देखो, आपने जिस ऑथर ने वो किया होता है, आपने उसको प्रॉपरली क्रेडिट भी तो देना होता है ना। लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ उसका काम उठा लो। एक ऑथर ने एक ड्रग इन्वेंट की है, एक ड्रग का इफेक्ट देखा है, आप जस्ट उसके आर्टिकल से वो चीज कॉपी करके अपने साइनॉप्सिस में डाल दोगी, लेकिन काम तो वो उसका है ना। एंड येट अगेन वो वाली बात कि मैंने तो बताना है ना कि ये उस ऑथर ने ये काम किया था, तो मुझे तो रेफरेंस देना है ना। यस, एक रिसर्च से आप एक से ज्यादा रेफरेंस ले सकते हैं। मैक्सिमम कितने रेफरेंसेस डाल सकते हैं, डिपेंड्स, आपके ऊपर है। अगर आप लाइक 20 भी फाइन है, बट अगर आप आर्टिकल राइटिंग करेंगे तो आर्टिकल में 20 से बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। साइनॉप्सिस के लिए 20 इज अ गुड नंबर। There is no such thing as minimum references. You have to adequately explain all the literature review जो भी आपने उसके ऊपर किया है, जनरल प्रॉब्लम को बताना, उसके बाद उसकी नेशनल और इंटरनेशनल स्टडीज के बारे में बताना, और उसकी इम्पोर्टेंस, और कितनी वो प्रॉब्लम ग्रेव है, ये सब कुछ आप तब बताएंगे ना जब आप अच्छे तरीके से रेफर कर चुके होंगे सारी स्टडीज को। ओके, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव जॉइंड लेट, साइनॉप्सिस हमारी रिसर्च का एक प्लान होता है जो हम रिसर्च करने से पहले करते हैं, उसको बनाते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि साइनॉप्सिस शो करके हम
एक एथिकल क्लियरेंस हासिल करें कि हम ये रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पेशेंट्स के ऊपर कोई रिसर्च करना चाहती हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर जाकर, मेडिसिन के वार्ड्स में, तो पहले मुझे एथिकली उसको अपने साइनॉप्सिस को क्लियर करवाना होगा, और उसी के लिए पहले मैं उसको साइनॉप्सिस लिखूंगी। साइनॉप्सिस के अंदर वो सारी चीजें होंगी जो बताएंगी कि मेरी रिसर्च किस चीज के ऊपर है, मेरी रिसर्च क्या होगी, मेरी रिसर्च कब से कब तक चलेगी, मेरी रिसर्च में कौन से पेशेंट्स इंक्लूड होंगे, कितने पेशेंट्स इंक्लूड होंगे, मेरी रिसर्च में क्या क्या होगा, मैं अपनी रिसर्च में क्या चीज मेजर करूंगी, और कभी कभी हम ये भी बता देते हैं कि मैं अपनी रिसर्च से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन बताता है? साइनॉप्सिस। इट्स लाइक अभी आपने रिसर्च स्टार्ट नहीं की है, बट पहले खड़े होकर आप अपनी रिसर्च की पूरी स्टोरी बता देते हो कि मैं ये भी करूंगी, ये भी करूंगी। यू हैव टू एक्सप्लेन सब कुछ पहले स्टार्ट में। ओके, अब हम अपना ये पोल डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स शुड बी इंक्लूडेड इन अ गुड लिटरेचर रिव्यू फॉर अ रिसर्च असेसिंग इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन हार्ट फेलियर? अच्छा, मैक्सिमम जिन लोगों ने आंसर किया है वो है ऑप्शन बी, और कुछ लोगों ने ऑप्शन ए किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स ऑप्शन बी ही है, बट क्यों है ये मैं बताती हूँ। ऑप्शन ए ये है, द बेस्ट एक्सरसाइजेज इन हार्ट फेलियर। ठीक है, अब ये 2021 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और नीचे वाला जो ऑप्शन बी है ये भी 2021 में हुआ था। एंड ऑप्शन सी कह रहा है डज द ड्यूरेशन पब्लिश्ड इन 2002। तो पहले तो हमने टाइम देख लिया कि 2002 की स्टडी को हम प्रेफर नहीं करने वाले अपने साइनॉप्सिस में। एंड साइनॉप्सिस में हम ये भी प्रेफर करते हैं कि हम सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स की स्टडी को साइट करें, उससे पीछे हम ना जाएं। हाँ, अगर आपको नहीं मिल रही कोई स्टडी तो फिर आप पीछे जा सकते हैं, बट नहीं। ठीक है, और ऑप्शन बी में और ऑप्शन ए में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? लाइक दोनों 2021 में पब्लिश हुए हैं, देन व्हाई आर यू गाइस जो बी है वो क्यों उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? तो द करेक्ट ऑप्शन इज कि ऑप्शन बी में सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ है। सिस्टमैटिक रिव्यू बेसिकली ये होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हुई होती है ना पब्लिश टिल डेट, वो सारी की सारी उन सब का निचोड़ एक रिव्यू आर्टिकल में डाल दिया जाता है। तो मुझे वो सारी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ एक रिव्यू आर्टिकल उठाती हूँ और पढ़ लेती हूँ कि समरी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिजीज है उसके ऊपर पढ़ लूंगी, पोलियो के ऊपर कोई सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ है तो वो मैं देख लूंगी। तो सिस्टमैटिक रिव्यूज ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टडीज व्हेन यू वांट टू साइट। ठीक है, यस यू कैन इंक्लूड, बल्कि सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस ही बेटर है व्हेन यू वांट टू ऐड साइटेशंस इन योर रिसर्च। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट होता है रिसर्च गैप एंड लिटरेचर। रिसर्च गैप बेसिकली ये होता है कि आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो इस रिसर्च से मतलब आप कौन सा गैप फिल करना चाह रहे हैं, इस रिसर्च से मेडिकल नॉलेज में फायदा क्या होने वाला है। अब एक एग्जांपल जो मैं बार बार दे रही हूँ, इंसोम्निया इन मेडिकल स्टूडेंट्स, इफ आई जस्ट गो एंड सर्च इंसोम्निया इन मेडिकल स्टूडेंट्स, तो मुझे बहुत ज्यादा स्टडीज मिलेंगी। ठीक है, हम यहाँ पर सर्च करते हैं इंसोम्निया। 382 स्टडीज मिल रही हैं, एंड आई बिलीव अगर हम दूसरे तरीके से सर्च करें तो इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो बहुत ज्यादा स्टडीज है। तो मुझे ये बात आइडेंटिफाई करनी है कि मैं अपनी स्टडी से, अपनी रिसर्च से मेडिकल नॉलेज में कौन सा गैप फिल कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज मुझे रिसर्च गैप बताएगी। अब इसकी एग्जांपल ये है, ये एक साइनॉप्सिस है। ठीक है, स्ट्रोक के पेशेंट्स के ऊपर कोई रिसर्च होने वाली है। ठीक है, अब इस रिसर्च ने बेसिकली ये देखना था कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स जो होते हैं लाइक वेट, हाइट और इस तरह की चीजें, इन चीजों का स्ट्रोक से क्या एसोसिएशन वगैरह है, और ये किस तरीके से रिस्क फैक्टर बनती है स्ट्रोक का। ठीक है, खैर वी आर नॉट कंसर्न। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इस टॉपिक में रिसर्च गैप किस तरीके से आइडेंटिफाई हुआ है। While studies have shown these three measures to be associated with overall stroke risk and ischemic stroke risk in particular, no such study has been conducted in Pakistan. तो बेसिकली आपको अपने रिसर्च गैप में ये बात बतानी होती है कि या तो ये स्टडी ओवरऑल पूरी दुनिया में कहीं हुई नहीं हुई है इस तरह की, जो जिस टॉपिक को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, या फिर हुई है तो पाकिस्तान में ही हुई है।
ठीक है, वही बात है कि अगर मैं इंसोमिया वगैरह के ऊपर बात करना चाहूँ और मैं ये देखूँ जाकर कि इंसोमिया के ऊपर तो कम स्टडीज थी लेकिन डिप्रेशन एंजाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा थी, तो वो चीज मैं अपने रिसर्च गैप में आइडेंटिफाई करूंगी। रिसर्च गैप में बताऊंगी कि मैं कौन सा ऐसा होल है, कौन सा गैप है जो फिल करूंगी अपने काम से। ठीक है, ये हो गया रिसर्च गैप। एंड द सेकेंड थिंग इज रैशनल। रैशनल इज व्हाई आर यू डूइंग दिस रिसर्च। ये दोनों थोड़े बहुत इंटर रिलेटेड है, आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। रैशनल इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, आपकी रिसर्च से क्या फायदा हो सकता है। एंड नो, रैशनल और रिसर्च गैप में आपको एज सच रेफरेंसेस की जरूरत नहीं होती, बट आपने ये बताना होता है जरूर, जैसे ये रिसर्च है कि ये काम बाहर की दुनिया में तो हुआ हुआ है, ठीक है, बाहर के मुल्कों में तो हुआ हुआ है, बट पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान में नो सच स्टडी हैज बीन कंडक्टेड इन पाकिस्तान का कोई रेफरेंस नहीं है, राइट। बट 16 ये जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है ये एक्चुअली ये रेफरेंस ही है। तो ये इस चीज का रेफरेंस है। तो मुझे एक चीज बता, जब ये बताना है ना कि स्टडीज ने ये शो किया हुआ है, तो उस चीज को मैं रेफर करूंगी। बट ये बताते हुए कि पाकिस्तान में बहुत कम स्टडीज है या पाकिस्तान में ये काम नहीं हुआ हुआ, उसके लिए रेफरेंस की जरूरत है भी और नहीं भी है। लाइक डिपेंड्स आपको मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है। हाउ डू यू नो कि टॉपिक यू चूज हैज नॉट बीन स्टडीड बिफोर इन पाकिस्तान। तो ये आपको फिर पबमेड और गूगल स्कॉलर ही बताएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हम लिटरेचर रिव्यू करते ही इसलिए ताकि हमें पहले ही खड़े होकर पता चल जाए कि क्या मैं जो रिसर्च करने जा रही हूँ इट इज इम्पोर्टेंट, या ये रिसर्च मैं कर सकती भी हूँ पाकिस्तान में या नहीं। जस्ट आप लोग अपने माइंड में येलो फीवर की एग्जांपल रखो। येलो फीवर पाकिस्तान में है ही नहीं और उसके ऊपर मैं 6-7 महीने जाया कर दूँ उसका डेटा कलेक्ट करने में, तो मुझे पेशेंट तो मिलेगा नहीं। तो लिटरेचर रिव्यू मुझे बताएगा ना कि मैं ये रिसर्च कर सकती हूँ कि नहीं।